آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر کچھ عجیب چیزیں دیکھیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے جو اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ سود خوروں کی بدحالی دیکھی، مجاہدین کا ثواب دیکھا۔ ایسے لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی دیکھی، سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ دیکھے، لکڑیوں کا بڑا گٹھا اٹھانے والے لوگ دیکھے، ایک بیل کا چھوٹے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا دیکھا، جنت کی خوشبو اور دوزخ کی آوازیں سنی۔ آپ نے یہ کس جگہ پر سنی، کیوں سنی، پوری تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ شب معراج کے حوالے سے ہے اور رسول پاک کا شب معراج پر جانا اور آنا اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا۔ اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹیک لگے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس جائیں، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما دیجئے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم فرما دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب سے رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، کبھی بارگاہ الہیہ میں حاضری دیتا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب
सवाब मिलेगा। लिहाजा ये सवाब में 50 नमाजें ही हैं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करेगा और फिर उसे ना करेगा तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया और उस पर अमल ना किया तो कुछ भी ना लिखा जाएगा, और अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। आपने फरमाया कि मैं जिब्रील के साथ रवाना हुआ यहाँ तक के करीब वाले आसमान तक पहुँच गया। हजरत जिब्राइल ने आसमानों के खाजन से कहा कि खोलिए। इसने सवाल किया कि आपके साथ कौन है? तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने दरियाफ्त किया, इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने जवाब दिया कि हाँ, इन्हें बुलाया गया है। इस पर उसने मरहबा कहा और दरवाजा खोल दिया गया और कहा गया कि इनका आना बहुत अच्छा आना है। हम ऊपर पहुंचे तो वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, बेटे और नबी के लिए मरहबा। फिर हम दूसरे आसमान तक पहुंचे। वहाँ भी जिब्रील से इस तरह का सवाल और जवाब हुआ जो पहले आसमान में दाखिल होने से कबल किया गया था। जब दरवाजा खोल दिया गया, ऊपर पहुंचे तो वहाँ ईसा और याहया अलैहिस्सलाम को पाया। उन्होंने भी मरहबा कहा। उनके अल्फाज यूं थे, मरहबा हो भाई के लिए और नबी के लिए। फिर हम तीसरे आसमान पर पहुंचे। वहाँ जिब्राइल से वही सवाल और जवाब हुआ जो पहले आसमानों में दाखिल होने पर हुआ। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मरहबा कहा। फिर हम चौथे आसमान तक पहुंचे। वहाँ भी जिब्रील से हस्ब साबिक सवाल हुआ और उन्होंने जवाब दिया। दरवाजा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुंच गए। वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने भी वही कहा, मरहबा। फिर हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो वहाँ भी जिब्रील से हस्ब साबिक सवाल और जवाब हुआ और दरवाजा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुंचे। वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने भी मरहबा कहा। फिर हम छठे आसमान तक पहुंचे। वहाँ भी हस्ब साबिक जिब्रील से सवाल और जवाब हुए। जब दरवाजा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुंच गए। वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी मरहबा कहा। जब मैं आगे बढ़ गया तो वो रोने लगे। उनसे सवाल किया गया कि आपके रोने का सबब क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि एक लड़का मेरे बाद माबूस हुआ, उसकी उम्मत के लोग जन्नत में दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत के दाखिल होने वालों से अफजल होंगे। फिर हम सातवें आसमान पर पहुंचे। वहाँ भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हस्ब साबिक सवाल और जवाब हुआ। जब दरवाजा खोल गया तो हम ऊपर पहुंचे। वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मरहबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर थे तो आपने कुछ मुख्तलिफ चीजें देखी। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। आपने ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे, और आपने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त किया, कौन लोग हैं? इन्होंने जवाब दिया, ये आपकी उम्मत के खतीब हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अपने सीनों को नाखनों से छील रहे थे। तो आपने हजरत जिब्राइल से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गिबत करते हैं। आपने सूदखोरों की बदहाली देखी। आपने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा, आए जिब्राइल, कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनके सर्रों को पत्थरों से कुचला जा रहा था। तो मैंने इनके बारे में हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो नमाज से कहली करने वाले हैं और सोते ही रह जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात ना देने वालों की बदहाली देखी जिनकी शर्म गहूं पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे। और आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। फिर आपका एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था। ये लोग
सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पक्का हुआ गोश्त नहीं खाते। आपने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया और फाहिशा औरत के साथ शब पाशी करता है और सुबह तक उसी के पास रहता है। और आपकी उम्मत की वो औरत है जो हलाल और तैयब शोहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती है। फिर एक शख्स पर आपका गुजर हुआ जिसके पास लकड़ियों का बहुत बड़ा गठड़ा है, वो उसे उठा नहीं सकता और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन शख्स है? तो जिब्रील ने बताया कि ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं, इनकी अदायगी की ताकत नहीं रखता और मजीद अमानतों का बोझ अपने सर लेने को तैयार है। इसके बाद ऐसे सुराख पर गुजर हुआ जो छोटा सा था, उसमें से एक बड़ा बैल निकला। बैल चाहता है कि जहाँ से निकला है फिर उसी में दाखिल हो जाए। आपने सवाल फरमाया कि ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये वो शख्स है जो कोई बड़ा कलमा कह देता है, जो गुनाह का कलमा होता है, उस पर वो नादिम होता है और चाहता है कि इसको वापस कर दे, फिर वो इसकी ताकत नहीं रखता। फिर आप एक ऐसी वादी पर पहुंचे जहाँ खूब अच्छी खुशबू आ रही थी और मश्क की खुशबू थी और आवाज भी थी। आपने फरमाया, ये क्या है? जिब्रील ने कहा, ये जन्नत की आवाज है, वो कह रही है कि ऐ मेरे रब, जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं वो लाइए और अपना वादा पूरा फरमाइए। इसके बाद एक और वादी पर गुजर हुआ, वहां सूत मनकर यानी ऐसी आवाज सुनी जो नागवार थी। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या है? जिब्रील ने जवाब दिया कि ये जहन्नम है, ये अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर रही है कि जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं उनको ले आइए और अपना वादा पूरा फरमाइए।